Which of the following individuals should routinely receive vaccination with conjugate meningococcal vaccine? इस एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन आता है. They generally give you history of young adolescents living in a hostel dormitory जो साथ में रहते हैं. क्योंकि जो मेनिंगोकोकल है इट गोज वाया द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन उसका होता है, राइट. तो जितना क्लोज में सब रहेंगे तो वहां पे ये वैक्सीन देना जरूरी है, right. So a healthy young adolescent moving to hostel, right, so living closely and there can be droplet infections, तो इनमें ये वैक्सीन देना चाहिए. ठीक है, clear with everyone? Right. What vaccines should you give in a patient who is undergoing splenectomy? स्प्लीनेक्टमी अगर हो रहा है कोई पेशेंट में तो उनमें कौन सी वैक्सीन देते हैं? स्प्लीनेक्टमी में कौन सा देते हैं वैक्सीन? पॉलीसैकेराइड कैप्सूल है जिसमें हिब वैक्सीन देते हैं, मेनिंगोकोकल वैक्सीन देते हैं और पीसीवी वाली वैक्सीन देते हैं. न्यूमोकोकल, मेनिंगोकोकल एंड हिब. वेरी गुड डॉक्टर, करेक्ट. Next one, program PERT and critical path method. These are the methods for, what are these methods for? PERT and CPM are methods of what? Yes. Anyone? This is, what is it a technique for? These are management techniques. Okay, these are management techniques. PERT is program evaluation and review technique and CPM is a critical path method. That's basically the shortest route जो हम use कर सकते हैं to reach a defined goal. ठीक है, so these are health management techniques where you are trying to get the best out of the resource available in a limited amount of time. ठीक है, so remember PERT and CPM methods. This is a frequently asked one-liner question कि PERT, that is program evaluation review technique, and critical path method, that is the shortest route. CPM, these are health management. Okay, these are health management. The National Strategic Plan to End TB covers the following, except which of the following? Except eliminate नहीं है इसमें. Remember there are 4 pillars in this plan, which is PTBD. That is prevent, treat, B for build, and D for detect. There's no eliminate here. So remember that इसके 4 pillars हैं PTBD, prevent, treat, build, and detect. Eliminate is not there. Okay, eliminate is not there. Okay, just remember this one liner again. ओपीवी बाइवैलेंट वैक्सीन में कौन सा होता है? ओपीवी बाइवैलेंट में, यस, ओपीवी बाइवैलेंट वैक्सीन कंटेन्स व्हाट 2 strains? Yes, it is P1 and P3. It is not P2 because P2 is not present. P2 has been eradicated long back. राइट, तो पहले ट्राईवैलेंट होता था, अभी बाईवैलेंट होता है. तो इसमें होता है P1 और P3, P2 नहीं होता है. ठीक है, P2 इरेडिकेट हो चुका है. इंक्यूबेशन पीरियड इन स्टेफाइलोकोकल फूड पॉइजनिंग, यस, कौन सा होता है? स्टेफाइलोकोकल इज समथिंग व्हिच कम्स विद इन 0 to 6 hours. ओके, जब तक 60 क्वेश्चन है शबनम तो 60 क्वेश्चन तक की क्लास चलेगी, राइट. या सो रिमेंबर कौन से होते हैं विद इन 6 hours जो आते हैं? विद इन 6 hours आने वाले, दैट मीन्स इट्स अ सीरियस कंडीशन. सो S फॉर स्टैफ, ओके, एंड सीरियस एंड ऑरियस. ओके, गोइंग राइमिंग जैसा. सीरियस एक होता है बैसिलस सीरियस, एक होता है स्टैफ ऑरियस. ये दो फूड पॉइजनिंग है, दे विल कम विद इन 6 hours से ये प्रेजेंट करेंगे.
जो स्टैफ ऑरियस है वो होगा ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, उन सब से। जो बैसिलस सीरियस है वो होगा चाइनीज फ्राइड राइस खाने से, ठीक है, फ्राइड राइस का कंजम्पशन। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करोगे आप कि ये ऑरियस वाला है कि ये सीरियस वाला है, ठीक है। डेयरी और बेकरी प्रोडक्ट्स है तो स्टैफ, और अगर फ्राइड राइस है तो सीरियस। ये दोनों आते हैं विद इन 6 आवर्स। Chandler's index is used in epidemiological study of कौन सा worm? Hookworm। ये क्या आपके RUHS MO एग्जाम में पहले भी आया है। Hookworm के लिए यूज होता है Chandler's index। What is Chandler's index? It is the number of hookworm eggs per gram of feces. Okay, number of hookworm eggs per gram of feces. It is a public health, right? When is it a serious public health? When the Chandler's index is more than 300, then it becomes a serious public health issue, right? So remember, more than 300 अगर होगा तो serious public health issue होगा. Chandler's index is for hookworm. Hookworm हमारे body में कैसे enter करता है? By what route does the hookworm enter the body? Remember, hookworm hooks on the skin, right? So it enters through the skin. It can cause cutaneous larva migrans, okay? Ankylostoma brasiliensis. तो ये स्किन से अंदर जाता है, जीआईटी में हुक करके, जीआईटी ब्लीडिंग करके, इट कॉजेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट वन, यस करेक्ट देवांशी, दैट इज स्किन। द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बॉटुलिज्म आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट बॉटुलिज्म इज व्हाट काइंड ऑफ पाल्सी? रिमेंबर बॉटुलिज्म डिसेंडिंग, ठीक है, इट इज डिसेंडिंग टाइप ऑफ पाल्सी, ऊपर से शुरू होगा। सो फेस मसल्स, आई मसल, डिसआर्थरिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, ऑक्यूलर नर्व पाल्सी, ये सब होगा। इसमें डायरिया नहीं होता है। डायरिया किसमें होता है? क्लॉस्ट्रीडियम में, DI रिमेंबर डिफिसिल, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कॉजेस डायरिया। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, नॉट क्लॉस्ट्रीडियम बोtulism, ओके, क्लॉस्ट्रीडियम बोtulism वाले में नहीं। Which species of Anopheles transmits malaria in urban areas? पूछा है specifically. Specifically urban areas पूछा है. So it is going to be Stephen C. Remember it as Stephen Hospital जो दिल्ली में है urban area में. So Stephen Hospital Delhi urban. Culicifacius is the one which is the most common in India. Rural और plain areas में ये वाला होता है. ठीक है, आपके एग्जाम में और पहले भी आया है कि कोस्टल एरिया में कौन सा एनोफिलस होता है? कोस्टल एरिया में, कोस्टल यानी बीच, बीच पे हम कब जाते हैं जनरली? संडे को, ओके। सो रिमेंबर इट एज संडेकस वाला इज कोस्टल बीच, ठीक है। स्टीफन हॉस्पिटल दिल्ली इज अर्बन, क्यूलिसिफेशियस इज कॉमन, ओके। सो ये है एनोफिलस के आपको ये स्पीशीज, एटलीस्ट ये 3 याद रखना। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड। यू नो दैट माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में कब आता है? नाइट को आता है, इसलिए नाइट में वो हम स्लाइड पेरिफेरल स्मीयर प्रिपेयर करते हैं ताकि चांसेस बढ़ जाएंगे टू गेट अ पॉजिटिव टेस्ट, राइट। सो रिमेंबर दैट इट इज नाइट वाला विच इज लेट नाइट 11 PM to 2 AM, ठीक है, 11 PM to 2 AM, तब हम ये सैंपल भी लेते हैं क्योंकि चांसेस ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव रिजल्ट इज मोर, ओके। सो जनरली ये नाइट टाइम वाले होते हैं फाइलेरिया। Next one, which epidemic in India is caused by type A arbovirus? Type A arbovirus. तो टाइप ए यानी ये अल्फा वायरस वाला है विच इज चिकनगुनिया, ओके। चिकनगुनिया, येलो फीवर, KFD, डेंगी, दीज आर बाय फ्लैवीवायरस. Chikungunya is by type A arbovirus, belongs to the family of Togaviridae, जिसमें रुबेला भी आता है, ठीक है। सो रिमेंबर चिकनगुनिया, आर्बोवायरस टाइप ए, अल्फा वायरस, टोगाविरिडी फैमिली में आता है। येलो फीवर, KFD, डेंगी इज गोइंग टू बी बाय फ्लैवीवायरस, ओके, दैट इज फ्लैवीवायरस। चिकनगुनिया का वेक्टर कौन सा? वेक्टर क्या है? मॉस्किटो, टिक, सैंड फ्लाई, यस
Very good. Remember, Aedes is the mnemonic that we have. Yellow fever, dengue, chikungunya and Zika. Okay, ये सब होते हैं Aedes से. So that is Aedes.